Good afternoon, everybody. Once again, welcome. Today's session is about para archery introduction basics, and we have Kuldeep Kumar, sir. He's the archery coach. He's Kuldeep Kumar Vedwan, Shrine Board Sports Complex, Astha Bhavan, Katra, Jammu, and they have a beautiful complex. I had the good fortune to see it online, and he's presently working in the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board Sports Complex. His objective is to train archers to win medal in Olympic and Paralympic and World Championships for the country. Professional details are very long, but I will go with first few. Since 2017, working as a archery technical advisor and coach at Shrine Board Complex in Katra. He's an ex-serviceman from Indian Army, founder and coach at Vedwan Archery Academy 2008 to 2012 at Bagpat, Uttar Pradesh, founder and coach at Ashoka Archery Academy 2015 to 2017 in Pondicherry, trained 200 plus archers in para-able category since 2008 who have won 150 plus medals at national and international level. My God, that is a huge, huge record, sir. And the list is very long, and so I will have to cut it here. But today we have two very special guests. We have Shri Pramod Chandrulkar, sir, Secretary General, Archery Association of India, and I also give hearty welcome to Shri Gunjan Abrolji, Assistant Secretary, Archery Association of India. It's very, very overwhelming to see when the heads and the father figures of a particular sport join in and encourage it. Indeed becomes a very holistic approach, and it gives an assurance to the athletes for whom we are conducting these webinars. For them it is very reassuring that the father figures are here, so they are being taken good care of, and there is a lot of focus on their development and growth. I also take an opportunity to welcome our para archers Harvinder Singh, Rakesh Kumar, Shyam Sundar, Vivek Chikara, Tarif Daya, Jyoti Balyan, and Pooja Khanna. They are the stars of today's para movement in archery, and not taking away too much time, I would request Kuldeep sir to take over, and we will be taking the questions in the end because he has designed his whole webinar in a way where we are going to keep enough time in the end to take the questions. You can keep writing your question. I'll make a note of them, but towards the end you can repost your questions. Welcome, Kuldeep sir. Over to you. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करने से पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री प्रमोद कुमार चंद्रूकर जी, जो हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ्यू शब्द कहें। जनरल सेक्रेटरी सर प्रमोद सर है अपना, संदीप जी थोड़ा आप देखिए। Yes sir, welcome sir, heartiest welcome. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपा जी। आपका नाम हमने काफी सुना हुआ है, एक काफी बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन हो। आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम किया है। वी रियली सैल्यूट यू। थैंक यू। आज आपने जो पैरा ओलंपिक्स में आर्चरी का जो सेशन रखा है, आई रियली प्राउड ऑफ माय आर्चर्स, जिन्होंने 21 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाइंग किया है, स्पेशली हरविंदर सिंह, राकेश कुमार, श्याम सुंदर, विवेक चक्रा। ये हमारे बेहतरीन हिंदुस्तान के आर्चर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग तो किया है, बट आई एम डैम श्योर कि दे विल वॉन द मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स आल्सो। थैंक यू। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी 2 महीने पहले हमारे इलेक्शंस हुए हैं, मैंने एज अ सेक्रेटरी जनरल पोस्ट लिया है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ कोच, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं पिछले 40 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंडियन आर्चरी एक काफी बड़े लेवल पर पहुंचे और पैरालंपिक एक हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से हमारे बाकी आर्चर्स वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स है, इंडियन टीम के मेंबर्स है, काफी सारे मेडल्स लिए, स्पेशली दीपिका हो, अतानु हो, तरुणदीप हो, और इन्हीं के तौर पर हमारे ये भी हरविंदर है, राकेश है, श्याम है, विवेक है, जिन्होंने देश के लिए काफी अच्छा नाम किया और मैं चाहता हूं कि ये और भी आगे आए।
आज कुलदीप हमारा एक बेहतरीन कोच है, जिन्होंने इन आर्चर्स को बनाया है। एक सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड आदमी है। और मैं जब भी इन लोगों से डिस्कस करता हूँ कि इन लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो एक मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक काम करने का मोटिवेशन मिलता है। जब ये लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम इनसे एक स्टेप आगे जाकर और क्यों ना करें। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि जब हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वर्ल्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो हमारे कोचेस भी बेस्ट इन द वर्ल्ड होना चाहिए, उन्होंने भी बेस्ट इन द वर्ल्ड काम करना चाहिए। दीपा जी, आपने जो ये वेबिनार के माध्यम से जो कार्यक्रम किया है, इट इज रियली बहुत बेहतरीन है। जहां सारी दुनिया एक लॉकडाउन के माध्यम से बंद है, कुछ कर नहीं पा रहे, दिमाग दिल में होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा सक रहे, उसके बावजूद भी ये एक ऐसा सेक्टर है, स्पोर्ट्स एक सेक्टर ऐसा है कि जहां हर वक्त हम एक एक्टिव रह रहे हैं, एक्टिव मोड में है, और हम भी कुछ कर रहे हैं और हम दुनिया को भी बता रहे हैं कि हमारे सारे स्पोर्ट्समैन एक्टिव है और आने वाले ओलंपिक्स में हम हमारे देश का तिरंगा जरूर लहराएंगे। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू फॉर मी गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। Thank you very much. So much. Thank you so much. And we once again thank Sports Authority of India for giving us this platform. And before we begin, sir, can I also greet Harvinder once? And वो एथलीट हैं, हरविंदर को एक बार लेंगे। हरविंदर, हार्टिएस्ट वेलकम। हरविंदर ने गोल्ड लिया था 2018 जकार्ता में, और बहुत कठिन समय में लिया था। मैं और हरविंदर एक साथ थे, और he had lost his mother and he had not even met her, and he was right there representing India for the tricolors, and कहीं भी उन्होंने अपना कोई भी इमोशनल लॉस, कोई भी ट्रेजेडी अपने गोल्ड के बीच में नहीं आने दी। आई थिंक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन, एंड ऑनेस्टली दैट डे आई रियलाइज्ड what is the dedication and duty of a sports person towards the tricolor of India. हरविंदर, आप हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। आप दो शब्द कहें, because truly the way you have inspired me and set an example, I think no other incident can ever explain the dedication of an athlete the way you have done it for our country. And I, as one of the head figures of Paralympic fraternity, extend my heartiest gratitude to you for that medal. दो शब्द हरविंदर आपकी तरफ से। जी, थैंक यू मैम। रिस्पेक्टेड प्रमोद चंद्रकर सर, दीपा मैम और सभी आर्चरी कोचेस जो इस समय मुझे देख और सुन रहे हैं, क्योंकि आज ये सेशन पैरा आर्चरी के रखा गया है, तो बहुत खुशी हुई कि चलो मतलब एबल के साथ साथ हम जो पैरा आर्चर है, जो पैरा एथलीट्स हैं, मतलब वो भी उनके बराबर हम मतलब तरक्की की राह को चढ़ रहे हैं। और खुशी हो रही है कि आज हमारे लिए ये सेशन रखा गया है, तो हम आपसे जो हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड है, आपके विचार सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम अपनी जो भावनाएं, अपने जो विचार है, वो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो और बहुत सारे जो पैरा आर्चरी में आना चाहते हैं या कोचेस हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू मैम। हरविंदर, एक वक्त अभी चल रहा है जिसे हम लॉकडाउन का वक्त कह रहे हैं, और एथलीट्स, खासकर पैरा एथलीट्स, थोड़ा सा मोराल में फर्क आ जाता है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, तैयारी कैसे होगी। वो क्या एक भावना थी कि आपने अभी अपनी मदर को खोया था, उन्हें मिले भी नहीं थे, लेकिन आपने अपने गेम में उसका बिल्कुल असर नहीं आने दिया। एक वो डिटर्मिनेशन, वो क्वालिटी हमें चाहिए हर एथलीट, हर स्पोर्ट्स पर्सन में, ताकि कोई भी ऐसी लो टाइम, लो फेज उनका कंसंट्रेशन ना हिला सके। जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं ये बात करता हूँ थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। आई एम सॉरी। एक्चुअली ये सिखाना बहुत जरूरी है कि मेंटल फोकस एक एथलीट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जी बिल्कुल। नहीं बात करना चाहते तो हम नहीं भी कर सकते। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने विचार शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली ये बात है एशियन गेम्स जाने से 20 दिन पहले की, जब मुझे अचानक पता चला था कि मेरे मॉम एक्सपायर हो चुके हैं। तो उस टाइम मुझे कैंप छोड़ के घर आना पड़ा। तो घर का माहौल कुछ अलग होता है ऐसी सिचुएशन में, तो खुद हिम्मत नहीं आ रही, घर वालों को भी हौसला दिया और फिर दोबारा कैंप ज्वाइन करके एशियन गेम्स खेलने गए थे। तो मन में यही था कि देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि माँ बाप किसी भी इंसान के सबसे ज़्यादा दिल के नज़दीक होते हैं।
जिनके कारण आपने ये दुनिया देखी। और माँ तो वैसे ही किसी के भी मतलब दिल के थोड़ा पास होती हैं। तो जब माँ को खो दिया तो उसके बाद जो मेरे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी देश की, कि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। तो मुझे यही था कि आज अगर ये जो 10 दिन पैरा एशियन गेम्स के थे, ये मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश की जिम्मेवारी के नाते यहाँ पर आया हूँ। और एक मन में यही था कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी जीत कर जाता हूँ तो वो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा मेरी मदर के लिए, जो कुछ समय पहले मतलब स्वर्ग सिधार चुकी थी। Thank you, Harvinder. Thank you for this motivation. Wish you all the best for 2021. And I will now ask Kuldeep sir to take us through the knowledge of para archery. Thank you so much, madam. I will share first screen. Yes. Shall I start, madam? Shall I start, madam? संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है. Please go ahead, sir. जी. Good evening all. Myself Kuldeep Vedwan, National Archery Coach from Shri Mata Vaishno Devi, Jammu and Kashmir. First of all, I would like to thank Sports Authority of India and Archery Association of India, हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री प्रमोद चंद्रूकर साहब जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया, और दीपा मैडम, पैरा ओलंपियन। तो दोस्तों, आज मैं यस कंटिन्यू करें सर। या तो आज मेरा सब्जेक्ट पैरा आर्चरी इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो पैरा आर्चरी, व्हाट इज आर्चरी दोस्तों? फर्स्ट, आर्चरी क्या है? आर्चरी धनुष और बाण, तीरंदाजी। तो तीरंदाजी पहला पैरा जो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, पैरा गेम्स कैसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा दोस्तों। 1948 लंदन ओलंपिक, ड्यूरिंग द लंदन ओलंपिक वहां पे स्ट्रोक मंडाविली गेम्स हुए, और उस दौरान टोटल 16 एथलीट जो पैरा जो गेम्स स्टार्ट हुए वर्ल्ड में, सबसे पहले लंदन में स्टार्ट हुए ड्यूरिंग द ओलंपिक्स गेम्स, और वहां पे मंडाविली स्ट्रोक मंडाविली गेम्स स्टार्ट हुए जिसमें 16 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, और वो 16 के 16 एथलीट आर्चरी के प्लेयर ही थे। तो मीन्स ऑफ दैट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई पैरा में स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है तो वो आर्चरी था दोस्तों। और दूसरा इवेंट इसका 1960, वो भी मंडाविली गेम्स जो आपका रोम में हुआ था, तो वहां पर भी ऐसे ही इसको मतलब इंट्रोडक्शन एक टेस्ट इवेंट की तरह रखा गया। और जो सबसे पहला पैरा ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुए 1976 जो आपका स्वीडन में स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, मैंने आर्चरी का बताया कहां से स्टार्ट हुआ, पैरा स्पोर्ट्स कहां से स्टार्ट हुआ। अभी मैं बताना चाहता हूं कि आर्चरी को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया है हाउ टू स्टार्ट आर्चरी। कोई भी मेरा पैरा एथलीट अगर बिगिनिंग से आर्चरी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको हम देयर इज मैनी स्टेप्स। हम पहले उसको ग्राउंड में रबर के साथ एक थेरा बैंड, एक स्ट्रेचिंग बैंड और एक इलास्टिक बैंड के साथ में हम उसको करा सकते हैं। उसको फिर हम सेकंड स्टेप पे लेके जाएंगे, इंडियन बो, रिकर्व बो, कंपाउंड बो। देयर इज 3 टाइप ऑफ बो होते हैं, तो हम उनको किसी भी बो के साथ में स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन पहले हमें उसका 1 वीक एंड 2 वीक एंड 1 मंथ हमें क्या करना होता है, उसका मसल्स को डेवलप करना होता है। जो उसका अपर, जो उसका दोनों राइट स्केपुला, लेफ्ट स्केपुला, देयर इज मेनी मसल्स जो हमें आर्चरी में यूज करनी होती है, तो वो हमें डेवलप करना होता है। तो उसके लिए 1 या 2 महीना टाइम लगता है दोस्तों। तो आर्चरी जब हम करते हैं, जब हम आर्चरी करते हैं तो हमारा सबसे पहले माइंड डेवलप होता है। कैसे?
आर्चरी इज ए माइंड टूल। अभी आपने ये शायद पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों ने आर्चरी मतलब माइंड का भी कोई टूल होता है। यस, देयर इज ए माइंड टूल, बिकॉज जब हम आर्चरी करते हैं, जब हम तीरंदाजी खेलते हैं, तो हम दिन में 200 300 जो हमारे सुपर इलीट एथलीट है, जो इलीट एथलीट है, तो वो दिन में 400 500 300 200 एरो शूट करते हैं। लेकिन बेसिक लेवल पे अगर हम 10 एरो भी शूट करते हैं तो मीन्स ऑफ दैट कि हम मेडिटेशन करते हैं दोस्तों। तो मेडिटेशन का मतलब ये है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि जब हम मेडिटेशन किस लिए करते हैं? एकाग्र करने के लिए अपने आप को। तो आर्चरी के अंदर ऑटोमेटिक आपका फुल डे जब आप शूट करते हो तो आपका मेडिटेशन होता रहता है, और हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आर्चरी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम आर्चरी करते हैं, कौन कौन से वो होते हैं, वो कैसे वो उपकरण होते हैं। तो आपको मैं सीधा अभी आपको इक्विपमेंट, आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ बोज, लेफ्ट साइड में देखोगे आप रिकर्व बो, सेंटर, कंपाउंड बो एंड इंडियन बो। रिकर्व बो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से लेकर के अप टू पैरा ओलंपिक गेम्स तक खेला जाता है। कंपाउंड बो जो बीच में है, एक फीमेल आर्चर ज्योति बालियान, ये वो आपका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से लेकर के अप टू पैरा ओलंपिक तक खेला जाता है। और जो लास्ट में इंडियन बो है, ये हमारा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप अप टू नेशनल तक खेला जाता है। ये ओनली नेशनल तक है, और ये हमारी कंट्री का ही बना हुआ धनुष है, हमारी कंट्री में ही बनता है। और ये धनुष से हम बेसिक लेवल इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी भी बो से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मसल डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं तो पहले मसल्स को डेवलप करते हैं। जो मसल पर्टिकुलर, समझो कि हम आर्चरी में हमारा स्केपुला, अपर ट्राइपीजियस, मिडिल ट्राइपीजियस, लोअर ट्राइपीजियस, आपका डेल्टोइड मसल, आपका लेंटू मसल, तो बहुत सारा मसल्स है। उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो लेस बाउंडेज, रबर, थेराबैंड, स्ट्रेच बैंड, इंडियन बो, तो इनके साथ में हम आपका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रिकर्व बो, इवेंट एंड कैटेगरी। आप यहां पे दोस्तों देखोगे इवेंट एंड कैटेगरी, जो रिकर्व बो होता है हमारा, और कंपाउंड बो इंडिविजुअल मैन, इंडिविजुअल वुमेन, मिक्स टीम, और टीम मैन एंड टीम वुमेन। ये बहुत ही जरूरी है समझना। आप देखोगे जब रिकर्व बो में हमारा जो पहला इवेंट है वो है इंडिविजुअल मैन। इंडिविजुअल क्या है? 1-to-1 मैचेस है। अगर हम आर्चरी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे ओलंपिक राउंड। तो ये मैन और वुमेन दोनों में होता है। मिक्स टीम इवेंट, मिक्स टीम इवेंट क्या है? जब हम नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में होते हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी ऐसे ही है, तो आपका एक मिक्स टीम और एक टीम इवेंट बनता है। तो मिक्स टीम क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं। एक स्टेट के 4 एथलीट होते हैं एक कैटेगरी के अंदर। समझो रिकर्व के अंदर 4 मैन है, 4 फीमेल है। तो आपका जो टॉप आर्चर होता है स्कोरिंग के अंदर, फीमेल एंड मेल, तो उनका एक मिक्स टीम बनता है, एक टॉप फीमेल और एक टॉप मेल। और ऐसे ही आपका टीम है, टीम के अंदर आपका 4 लोग खेलते हैं, 4 लोग होते हैं टीम के अंदर, लेकिन टॉप 3 खेलते हैं। जैसे कि 29 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो उसमें क्या है हमारा दोस्तों, कैसे ये खेला जाता है? नियर अबाउट 40 एंड 42 यूनिट्स होती है, मतलब स्टेट और यूनिट्स मिला करके। तो उन सभी का टीम्स बनता है, और उसमें से हम 16 टीमें चुनते हैं। तो टीमों का जो मैच होता है वो भी आपका 3 लोग खेलते हैं उसमें, और मिक्स टीम में 2 लोग खेलते हैं, टॉप फीमेल एंड टॉप मेल, और इंडिविजुअल में आपको 1-by-1 मैचेस मैंने बताया है। कंपाउंड एंड रिकर्व, आप देखोगे राइट साइड में कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड में भी सेम है जो मैंने रिकर्व में बताया, वो भी ऐसे ही खेलते हैं और वही सेम कैटेगरीज है। W1 कैटेगरी में भी दोस्तों जो मैंने रिकर्व और कंपाउंड ओपन में बताया, वही सेम W1 कैटेगरी में भी ऐसे ही मैन इंडिविजुअल और वीमेन टीम एंड मिक्स टीम खेलते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के दौरान क्या
प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। ड्यूरिंग द नेशनल क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम वे है, लेकिन नेशनल क्लासिफिकेशन के दौरान आपको कंफर्म स्टेटस नहीं मिलता है। और कैसे होता है नेशनल क्लासिफिकेशन? हमारी कोई पैरा आर्चरी चैंपियनशिप या कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का कोई ट्रायल है तो उस दौरान हम नेशनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वहां पर एक डॉक्टर का पैनल होगा जिसमें 2 डॉक्टर होंगे और वहां पे एक मेडिकल रूम होगा, एक उसमें बेंच टेस्टिंग के लिए बहुत सारी डिवाइस होगी और वहां पे आपका डॉक्टर आपको प्रॉपरली आपका डिसेबिलिटी के अनुसार आपको वहां पे चेक किया जाएगा कि आपको क्या डिसेबिलिटी है। लेकिन जो नेशनल क्लासिफायर होते हैं वो आपको कंफर्म स्टेटस नहीं दे सकते हैं। वो आपको अगर उनको लगता है कि ये आर्चर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में पास हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, देन दे विल गिव यू रिव्यू स्टेटस। अगर आप उनको लगता है कि ये क्लासिफाइड नहीं होगा तो आपको वो NE देंगे, नॉट एलिजिबल। और इंटरनेशनल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इंटरनेशनल में आपको परमानेंट स्टेटस मिल सकता है। ये वर्ल्ड आर्चरी का रूल है, नेशनल क्लासिफायर कैन नॉट गिव यू कंफर्म स्टेटस। मेडिकल क्लासिफिकेशन, कोई भी आर्चर अगर मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए जाएगा, अगर आर्चरी करना चाहता है, देन ही हैव टू गो ए क्लासिफिकेशन। और उसके लिए जब मेडिकल क्लासिफिकेशन ले जाता है तो वहां पे एक टीम होती है जो क्लासिफायर होते हैं, वो आपको वहां पर डिवाइस देते हैं, असिस्टिव डिवाइस। वो क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे मेरी स्लाइड में राइट साइड में 2 पिक्चर है, एक आर्चर स्टूल के ऊपर बैठा है और एक आर्चर व्हील चेयर के ऊपर बैठा है। तो दोस्तों ये असिस्टिव डिवाइस है और ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन वहां पर आपका टीम मैनेजर एंड टीम कोच होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड आर्चरी कैन क्लासिफाई एथलीट एज स्टैंडिंग कैटेगरी, W2 कैटेगरी और W1 कैटेगरी। तो दोस्तों मैंने इस स्लाइड पे 3 कैटेगरी आपको मैं बताऊंगा। ST कैटेगरी जो हमारी स्टैंडिंग कैटेगरी है, उसके अंदर आपको जो डिसेबिलिटी होती है आपको वो अपर बॉडी के अंदर भी हो सकती है और लोअर बॉडी के अंदर भी हो सकती है। लेकिन आपको जो हमारे स्टैंडिंग कैटेगरी के एथलीट है उनको स्टूल या चेयर से शूट करना होता है, जो वर्ल्ड आर्चरी के रूल के अकॉर्डिंग ग्राउंड में फिट हो। उसका एक मेजरमेंट होता है 60 into 80 सेंटीमीटर। W2 आर्चर जो पैराप्लागिया, उनको एक बहुत सीवियर डिसेबिलिटी होता है जो खड़ा नहीं हो सकता है। कुछ आर्चर खड़े भी हो सकते हैं W2 कैटेगरी में। उनको मैक्सिमम आर्चर जो देखे हैं हमने, उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। और W2 आर्चर चेयर से, व्हील चेयर से शूट कर सकते हैं। और W2 आर्चर कंपाउंड और रिकव दोनों कैटेगरी में शूट कर सकते हैं, बट इन ओपन कैटेगरी, नॉट इन W1। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, स्टैंडिंग एंड W2 ये ओपन कहां से आ गया? एक नया सब्जेक्ट, नया चीज। तो ओपन क्या है दोस्तों? वर्ल्ड में कम एथलीट होने के कारण जो हमारी वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड आर्चरी, उन्होंने एक ओपन कैटेगरी बनाया है। तो स्टैंडिंग एंड W2 दोनों ही ओपन कैटेगरी में खेलते हैं। W1, जो W1 एथलीट होते हैं उनको बहुत ही सीवियर डिसेबिलिटी होती है। उनके लोअर लिम मीन्स ऑफ दैट उनके 3 लिम काम ही नहीं करते हैं। दोनों पैर और उनके दोनों हाथों में भी कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है। वो जो क्या डिसेबिलिटी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करूंगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो W1 के लिए मैंने बताया कि उनको 3 लिम्स काम ही नहीं करते, जो उनको बहुत सीवियर डिसेबिलिटी होती है, उनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, उनके जो ट्रंक में भी उनके प्रॉब्लम हो सकती है और उनको अपर लिम्ब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो W1 के एथलीट होते हैं हमारे, वो व्हील चेयर से कंपल्सरी शूट करना होता है। वर्ल्ड आर्चरी कैन क्लासिफाई एथलीट एज NE नॉट एलिजिबल। जो मेरे एथलीट, जो मेरे पैरा एथलीट्स है, अगर उनको समझो ना स्टैंडिंग कैटेगरी मिला, ना उनको
W2 मिला ना W1, तो उनको नॉट एलिजिबल मिला है। तो उनको मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दे कैन गो एज ए एबल कैटेगरी एथलीट, वो एबल कैटेगरी में खेल सकते हैं। विजुअल इंपेयर, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे विजुअल इंपेयर्ड एथलीट होते हैं उनके लिए क्लासिफिकेशन का सेम ही तरीका होता है, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन को भेजना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मेरे विजुअल इंपेयर्ड एथलीट्स है। मुझे पता है आज मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 322 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे विजुअल इंपेयर्ड होंगे, जो मेरे डिसेबल मतलब जिनको W2 W1 स्टैंडिंग कैटेगरी में होंगे। लेकिन मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं जो मेरे विजुअल इंपेयर्ड जो एथलीट्स है कि वो क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए वीडियो। नाम अजीत कुमार है। 2009 में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुआ और आज मैं निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। किंतु मैं जब मैं 5 वर्ष का था, जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई और उसके पश्चात मुझे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या कोई व्यक्तिगत समस्या हो, किंतु उन समस्याओं से कभी हार नहीं माना और उसको एज ए चैलेंज स्वीकार किया। उसके पश्चात मैं स्कूल कॉलेजेस में भी समस्याएं आई। अच्छे नंबर प्राप्त होने के बाद, अच्छे मार्क्स प्राप्त होने के पश्चात जब नौकरी के लिए जाते थे तब भी भेदभाव होता था, क्योंकि योग्यता बाद में आकी जाती थी। उससे पहले दिव्यांगता को देखकर लोग मतलब कि उसको अस्वीकृत कर देते थे। ऐसा हुआ, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले मैं टीचर बना, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैं चयनित हुआ। अतः मेरा तो मानना यह है कि मजबूत इरादे हैं और कुछ करने की तमन्ना है और सही योजना है आपके पास, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपके पास एक आंख हो या 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, श्री अजीत कुमार जी जो 2009 बैच के IAS है, उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 5 साल की एज के अंदर अपना दोनों आंखों का रोशनी खो दिया और उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। मैं दोस्तों एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे जो भाई है, जो मेरी बहनें हैं, जो अभी मतलब जो विजुअल इंपेयर्ड है, वो हार नहीं माने, अपने घर से बाहर आए, स्पोर्ट्स में आए, स्टडी करें। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता था श्री अजीत कुमार जी के जरिए। तो मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग स्पोर्ट्स से जुड़े, स्टडी से जुड़े। नाम अजीत कुमार है। मेडिकल इंटेक फॉर्म इसका एक टाइम लिमिट होता है दोस्तों, और ये जो मेडिकल इंटेक फॉर्म है आपको नेशनल फेडरेशन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से वर्ल्ड आर्चरी को भेजना होता है। लेकिन जब आप नेशनल फेडरेशन को देने से पहले आपको क्या करना होता है, जो ये फॉर्म मैंने राइट साइड में आप देखोगे एक फॉर्म अटैच है स्लाइड के ऊपर, ये न्यू मेडिकल इंटेक फॉर्म है। क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी की जो वेबसाइट है, जब आप गूगल करोगे, आप ये फॉर्म ढूंढने की कोशिश करोगे, सो देयर इज 2 टाइप ऑफ फॉर्म। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्म यहाँ पे अटैच किया है ताकि सब लोग अच्छे से देख सके, क्योंकि ये मेरी स्लाइड सबके पास आने वाला है। तो ये जब डाउनलोड करो तो ये फॉर्म होना चाहिए, और फॉर्म को आपको डिजिटली भरना है। यू हैव टू फिल डिजिटली।
और उसके साथ जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि MRI, डिजिटल एक्सरेज, और आपका जो चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी उसके साथ में आपको अटैच करना होता है। और इसका एक टाइम लिमिट होता है, जब आपका नेशनल कंपटीशन हो या इंटरनेशनल कंपटीशन हो, जो आपका शेड्यूल डेट होता है क्लासिफिकेशन का, उस डेट से आपको 30 दिन पहले भेजना होता है, 30 डेज बिफोर। तो अगर 30 दिन पहले हमें वर्ल्ड आर्चरी को भेजना है तो 1 वीक मीन्स ऑफ दैट 40 दिन पहले आप अपनी फेडरेशन को उसको भेज दे, ताकि उसमें कुछ समझो कि आपने प्रॉपर से फिल नहीं किया है, डॉक्टर की स्टैंप नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, तो वो फेडरेशन आपको दोबारा उसको रिमाइंड करे और आप उसको प्रॉपर उसको फिल करके भेजे। जो मेरे विजुअली इंपेयर्ड एथलीट है उनके लिए जो टाइम लिमिट है वो 6 वीक 42 डेज टाइम होता है। और ये फॉर्म आपको classification@archery.org एक मेल आईडी है, वहां पे आपको भेजना होता है। और इसमें आपको मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, बाय द वे किसी आर्चर को लेट पता चलता है कि मुझे भी भेजना था क्लासिफिकेशन के लिए, एक्चुअली मुझे भी कराना था, अगर वो लेट हो गया है तो उसके लिए एक प्रावधान है वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से, आप पेनल्टी फीस पे करके लेट फीस पे कर सकते हो और आपको थ्रू फेडरेशन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल फेडरेशन है हमारी, उसके माध्यम से भेजना होता है। मेडिकल इनटेक फॉर्म फ्लो चार्ट, जैसे कि मैं आपको पहली स्लाइड के ऊपर पूरा डिटेल में मेडिकल इनटेक फॉर्म का बताया, तो ये दोस्तों मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, 30 डेज पहले भेजना चाहिए, एक क्या प्रोसीजर है, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब मेरा स्लाइड आपके पास आएगा तो आप देख सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। हाउ टू क्लासिफाई अ लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, देयर इज 2 स्टेप्स, बेंच टेस्टिंग एंड फील्ड टेस्टिंग। मैं इससे पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, जब हम मेडिकल इनटेक फॉर्म वर्ल्ड आर्चरी को भेजते हैं तो दोस्तों वहां से आपको वर्ल्ड आर्चरी से एक रिप्लाई आता है कि समझो नेशनल आर्चरी फेडरेशन 6 आर्चर का इनटेक फॉर्म वर्ल्ड आर्चरी को भेजा है, जो उनके डॉक्टर पैनल होता है वो चेक करते हैं सब मेडिकल इनटेक फॉर्म और आर्चर की डिसेबिलिटी के अनुसार जो उसको डिसेबिलिटी है उसको चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आर्चर का डिसेबिलिटी कम होता है, तो वर्ल्ड आर्चरी का रिप्लाई कुछ ऐसे आता है, वो भेजते हैं कि these 2 आर्चर या these 3 आर्चर they are not eligible for classification and these 3 आर्चर they are eligible for classification। तो ये 2 आर्चर का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि उनका डिसेबिलिटी कम है और इनका डिसेबिलिटी ठीक है, इनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आप इनको रजिस्टर कर दीजिए। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे पैरा आर्चरी क्लासिफिकेशन फॉर्म, इसको हम क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जो आर्चर का क्लासिफिकेशन हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। आप देखोगे इस सर्टिफिकेट में एक फोटो लगा है, फोटो के जस्ट नीचे उसका जेंडर, स्टेटस, डेट ऑफ रिव्यू एंड वर्ल्ड आर्चरी आईडी। आप देखोगे जहाँ पे स्टेटस लिखा है वहां पे लिखा है कंफर्म स्टेटस सी, नीचे नाम और उसका कंट्री जो भी उसका पूरा डिटेल है यहाँ पे है। आप जस्ट फोटो के राइट साइड में देखोगे वहां पे असिस्टिव डिवाइस आर्चर का क्या है, यहाँ पे व्हीलचेयर है, और उसके जस्ट राइट में देखोगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लास क्या है, वो W2 है। तो मीन्स ऑफ दैट ये आर्चर व्हीलचेयर पर है और इसका क्लास W2 है, तो ये आप इससे पहचान सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहूंगा, जो एथलीट क्लासिफिकेशन के दौरान जो कंफर्म स्टेटस जिनको मिलता है, जिनको ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपना सर्टिफिकेट हमेशा कैरी करे और अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली मेल पर रखे या अपने फोन में फोटो खींच कर रखे, या मतलब व्हाटएवर उनको वो रखना है साथ में, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरनेशनल इवेंट वहां पर एक आपका इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होता है और वो सबसे पहले आर्चर का पासपोर्ट और मेडिकल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट ही चेक करते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको खेलने को नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये सर्टिफिकेट अपने साथ ही रखे। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे आप सर्टिफिकेट का बैक साइड है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, क्या पॉइंट एलोकेशन है, सब इसमें दिया गया है। ये आप जब आपके पास स्लाइड आएगा आप देख सकते हो। बेंच टेस्टिंग, ये बहुत ही, इसके ऊपर आपका
थोड़ा टेंशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेंच टेस्टिंग के दौरान क्या क्या टेस्ट होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द बेंच टेस्टिंग जब इंटरनेशनल या नेशनल क्लासिफिकेशन हो, वहां पे एक मेडिकल रूम होता है, एक टीम होती है और वहां पे उनका पूरा असिस्टिव डिवाइस होता है। कैसे? एक बेंच टेस्टिंग के दौरान आपको जो एथलीट को बेंच के ऊपर लेटा करके उसका पूरा डिसेबिलिटी जिस पार्ट में है उसको चेक करते हैं। अगर वो W1 का है या W2 का है या स्टैंडिंग का है तो वो उसको प्रॉपर चेक करते हैं। तो क्या क्या चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि स्टैंडिंग कैटेगरी में मेरा एथलीट है तो उसका लोअर या अपर बॉडी में डिसेबिलिटी हो सकता है। समझो कि उसको लेफ्ट लेग में डिसेबिलिटी है तो आपको लेग को उठाने के लिए बोलेंगे, लिफ्ट करने के लिए बोलेंगे, वो आपके पैर को प्रेस करेंगे, फिर आपको बोलेंगे आप इसको उठाइए, आपको फिर वहां पे वॉक करने के लिए बोलेंगे, आपको बैठने के लिए बोलेंगे, खड़ा होने के लिए बोलेंगे, आपको जंप करने के लिए बोलेंगे। तो मतलब ये पूरा टेस्ट का जो एक प्रोसीजर है नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स होता है। और ड्यूरिंग द बेस्ट टेस्टिंग आपका टीम मैनेजर एंड टीम कोच आपके साथ होना बहुत ही जरूरी है। सर एक रिमाइंडर दे दें इधर, हम लोग एक बार जो भी चैट बॉक्स में प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिएगा, बिकॉज हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो जो लोग नए ऐड हुए हैं, एक गूगल फॉर्म भी है, उसका लिंक भी हम चैट रूम में डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, और आप अपनी अटेंडेंस, नेम, प्लेस एंड डेजिग्नेशन प्लीज चैट बॉक्स में एंटर करते रहिए। थैंक यू सर, टेक ओवर। थैंक यू। पॉइंट एलोकेशन, अभी आप यहाँ पे देखोगे पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है। आप देखोगे एक आर्चर, जैसे कि बो, आपके बो भी है पूरा स्ट्रिंग आर्म से खींचा हुआ है, बो हैंड से पकड़ा हुआ है। तो पॉइंट एलोकेशन देख सकते हो दोस्तों आप, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड स्टोमक आप देखोगे 20, 30। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। अपर बॉडी में आपके पॉइंट आपके 180 पॉइंट्स होते हैं, और जो आपका ट्रंक होता है वहां पे देखो 40 पॉइंट्स होते हैं, और जो आपका लोअर बॉडी होता है वहां पे आपके 100 पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे पॉइंट एलोकेशन होते हैं जब आपका एक क्लासिफायर, आपका बोर्ड, आपका जब बेंच टेस्टिंग और आपका फील्ड टेस्टिंग करता है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। W1 क्लास, जो W1 मेरे एथलीट्स होते हैं उनको 85 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होता है W1 कैटेगरी के खेलने के लिए। तो 85 पॉइंट्स आपको बॉडी में कहाँ होने चाहिए। आपके 50 पॉइंट्स जो आपका लोअर लिम्ब में होने चाहिए, और आपके 25 पॉइंट्स अपर लिम्ब में, आपके दोनों हाथों में होने चाहिए, और 10 पॉइंट्स मिनिमम आपके ट्रंक में होने चाहिए। तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, W1 जो हमारे एथलीट होते हैं उनको कहाँ कितने पॉइंट्स होने चाहिए। अभी जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि W1 आर्चर को कंपल्सरी व्हील चेयर से शूट करना होता है। W1 आर्चर को कंपल्सरी व्हील चेयर से शूट करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे W2 जो हमारे एथलीट होते हैं उनको मिनिमम 50 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, और W2 जो मेरे एथलीट है उनको लोअर बॉडी में ज्यादा डिसेबिलिटी होती है और अपर बॉडी में बहुत ही कम उनको डिसेबिलिटी होती है। लेकिन जो W2 आर्चर होते हैं वो चेयर और स्टूल से भी शूट कर सकते हैं, और W2 एथलीट कंपाउंड और रिकव दोनों में खेल सकते हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी। मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं, W2 कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में खेलना होता है, क्योंकि स्टैंडिंग एंड W2 को मर्ज किया हुआ है वर्ल्ड आर्चरी ने, तो दोनों को ओपन कैटेगरी में खेलना होता है। आप कंपाउंड में भी खेल सकते हो, अदर रिकव में भी खेल सकते हो। स्टैंडिंग क्लास के अंदर आपको जो डिसेबिलिटी है वो अपर बॉडी या लोअर बॉडी दोनों में हो सकता है। तो अपर बॉडी या लोअर बॉडी आपका जो डिसेबिलिटी है वो कहां से कहां तक आपको हो सकता है। आपका जो रिस्ट से लेकर के आपके आर्म तक हो सकता है, और आपके लोअर बॉडी में आपके एंकल से लेके आपके नीज तक हो सकता है। और जो मेरे स्टैंडिंग एथलीट्स होते हैं वो स्टूल या चेयर से शूट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूल और वो चेयर, उसका कोई भी पार्ट आपके बो आर्म को सपोर्ट ना करे, आपके ट्रंक को सपोर्ट ना करे। फील्ड टेस्टिंग, ड्यूरिंग द फील्ड टेस्टिंग आप शूटिंग लाइन पे होते हो, आप देखोगे राइट साइड में एक मैंने फोटो दिखाया है।
तो फोटो के अंदर देखोगे लेफ्ट साइड में एक रेड टी शर्ट में जज है और फिर शूटिंग लाइन पे 3 आर्चर खड़े हैं और कोच उसके जस्ट पीछे खड़े हैं। तो ऐसे मतलब एक ग्राउंड होता है, सामने टारगेट होते हैं 50 मीटर और 70 मीटर पर, 70 मीटर पर, और आर्चर ऐसे शूट करते हैं। तो ड्यूरिंग द फील्ड टेस्टिंग, जो फील्ड टेस्टिंग होता है आपका क्लासिफिकेशन का, तो आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल क्लासीफायर होते हैं वो आपको दूर से खड़े होकर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? कि हमारा जो डिसेबिलिटी होता है जो हमारे पैरा एथलीट्स का, वो बहुत किसी को ज्यादा होता है कि उसको असिस्टिव डिवाइस, जैसे कि असिस्टिव डिवाइस का हम नाम लेते हैं, आपको बेल्ट भी यूज, व्हील चेयर आर्चर बेल्ट भी यूज कर सकता है, और स्टैंडिंग कैटेगरी का जो एथलीट है वो स्टूल भी यूज कर सकता है। तो वो उसको जज करते हैं, उसको देखते हैं कि किस आर्चर को क्या डिवाइस हम दे सकते हैं। एक बार मैं आपसे पूछती हूँ, फिर ये ऊपर चला जाता है क्वेश्चन। जगदीश कुमार जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली देयर आर 2 क्लासेस, standing and W2, one class W1 and another W2. So there are 2 classes basically in which there is a 3 classes, W1, W2 and standing. But W2 and open category, standing category open category में खेलते हैं. Okay. And third is visually impaired भी है एक कैटेगरी। या विजुअली इंपेयर्ड का मैंने बताया है, लेकिन इंडिया में अभी कोई भी एथलीट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन होता है, मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी सर। जी, फील्ड टेस्टिंग, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लासीफायर जो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो आपको दूर से चेक करते हैं कि आपको आपके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या असिस्टिव डिवाइस दी जाए, और आफ्टर फील्ड टेस्टिंग ही आपको रिजल्ट मिलता है। जो आपका क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको फील्ड टेस्टिंग के बाद ही दिया जाता है, और आपको उसमें जब आपको क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको नॉट एलिजिबल भी मिल सकता है, आपको एलिजिबल विद रिव्यू स्टेटस भी मिल सकता है, और एलिजिबल आपको परमानेंट स्टेटस भी मिल सकता है। तो आपको 3 स्टेटस मिल सकता है आफ्टर फील्ड टेस्टिंग। अभी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो, उसमें कोई साउंड नहीं है, वीडियो प्ले करूंगा और उसके दौरान मैं आपको बताता भी रहूंगा ड्यूरिंग द फील्ड टेस्टिंग। देखोगे आप दोस्तों ऐसे शूट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो डिफरेंट स्पोर्ट्स से है, डिफरेंट पैरा स्पोर्ट्स से है, तो सभी लोग आर्चरी देखेंगे, क्योंकि हमने सुना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कैसे आर्चरी होता है, वो ऐसे होता है दोस्तों। तो आर्चरी में आप देखोगे व्हील चेयर पे भी एथलीट है, स्टैंडिंग में भी एथलीट है, और आपका स्टूल पे भी एथलीट है, और कोचिज आप देखोगे साइड में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, और सब आर्चर्स, एक टाइम होता है 4 मिनट टाइम होता है 6 एरो चलाने के लिए, और एक टारगेट पर 2 ही आर्चर शूट करते हैं। आप देखोगे कि एक टारगेट पे 2 ही आर्चर, क्योंकि वहां पे व्हील चेयर आर्चर होते हैं, हमारे स्टूल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ही आर्चर शूट करते हैं। एबल कैटेगरी में हमारे 3 और 4 भी आर्चर शूट कर सकते हैं। तो आप देखोगे वीडियो कैसे, मतलब ये एक इंटरनेशनल इवेंट का, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट का एक वीडियो है, जहां पर इंडियन पैरा आर्चरी ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था टीम इवेंट में। और टीम में कौन कौन था सर उसमें? टीम में मैडम उसमें राकेश कुमार, तारीफ दहिया और श्याम सुंदर स्वामी। एंड तारीफ दहिया अब मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स अथॉरिटी में या हरियाणा स्पोर्ट्स अथॉरिटी में असिस्टेंट कोच है। उनको जॉब भी मिला है अपने इसी क्वालिफिकेशन एंड मेडल्स की वजह से। जी मैडम, जी मैडम। वेरी नाइस। टारगेट फेस एंड डिस्टेंस, जैसे कि मैडम ने अभी क्वेश्चन पूछा था 2 कैटेगरीज, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ओपन कैटेगरी के अंदर हमने 2 कैटेगरी को मर्ज किया हुआ है, W2 एंड स्टैंडिंग। तो W2 का फेस एंड डिस्टेंस क्या होता है? कंपाउंड डिवीजन अगर हम खेलेंगे तो 50 मीटर डिस्टेंस होता है, और 80 सेंटीमीटर 6 to 10 रिंग फेस होता है। तो ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज 6 to 10 रिंग? तो दोस्तों 80 सेंटीमीटर साइज होता है जो फेस टारगेट शीट के ऊपर हम शूट करते हैं, और उसके अंदर जो रिंग होते हैं, जो उसके अंदर गोला येलो, आपके उसके बाद में फिर रेड होगा, फिर आपका ब्लू होगा, तो ऐसे उसको डिवाइड किया होता है रिंग के अंदर। तो जो 50 मीटर फेस, 50 मीटर डिस्टेंस एंड 80 सेंटीमीटर आपका जो फेस होता है, उसमें 6 रिंग होता है। और अगर हम रिकर्व डिवीजन में जाएंगे तो उसका 70 मीटर
डिस्टेंस होता है और 122 सेंटीमीटर टारगेट फेस और 1 to 10 रिंग फेस होता है। तो इसको आप नीचे देखोगे RWORMOCWOCMO, तो इस थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं क्लियर करूंगा इसको। रिकव वुमेन ओपन, रिकव मैन ओपन, कंपाउंड वुमेन ओपन एंड कंपाउंड मैन ओपन, तो ये हमारी कैटेगरीज है। तो इस तरीके से हमारा फेस एंड डिस्टेंस W2 एंड स्टैंडिंग ओपन कैटेगरी में खेला जाता है। फॉर W1, जो W1 मेरे एथलीट होते हैं उनको 50 मीटर मतलब 50 मीटर डिस्टेंस एंड 80 सेंटीमीटर 1 to 10 रिंग फेस। अभी देखोगे आप ऊपर भी 80 सेंटीमीटर है और नीचे भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, उधर 6 to 10 रिंग है और इधर 1 to 10 रिंग फेस है। ये कंपाउंड वुमेन एंड कंपाउंड मेन, इसमें रिकव नहीं खेला जाता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो W1 मेरे एथलीट है उनको बहुत सीवियर डिसेबिलिटी होती है और उनका जो बॉडी बैलेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए उनको कंपाउंड कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि रिकव के अंदर हमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो W1 आर्चर बहुत मुश्किल होता है उसको करने के लिए। असिस्टिव डिवाइस W1, फील्ड असिस्टेंट। जो W1 एथलीट, मैंने पहले भी बोला है कि W1 एथलीट का 3 लिम्स काम नहीं करता है, इसीलिए उसको एक असिस्टेंट ऑथराइज होता है क्लासीफायर की तरफ से। जो वर्ल्ड आर्चरी के जो क्लासीफायर होते हैं, जो नेशनल क्लासीफायर होते हैं, वो W1 एथलीट को एक अटेंडेंट यानी कि एक असिस्टेंट उसको ऑथराइज करते हैं, जो उसका एरो उसका नो करेगा और उसका जो भी एरो लेके आना, मतलब जो भी उसको हेल्प चाहिए होता है ड्यूरिंग द शूटिंग, उसको वो करता है। आप देख सकते हो एक आर्चर बो के साथ है, शूटिंग पोजीशन में है और जस्ट उसके पीछे एक असिस्टेंट खड़ा हुआ है, तो वो उसका हेल्प करता है दोस्तों। असिस्टिव डिवाइस फॉर W1, शोल्डर स्ट्रिप्स एंड लेग स्ट्रिप। अब यहां पे आप देखोगे 2 एथलीट है, एक लेफ्ट साइड में व्हाइट टी शर्ट में है, एक ब्लू। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है, लेफ्ट साइड में जो एथलीट है जो व्हाइट टी शर्ट में है, उसको बिल्कुल क्रॉस में ब्लैक स्ट्रिप है चेस्ट के अंदर, देख सकते हो आप। तो ये एक असिस्टिव डिवाइस है जो ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन दिया जाता है। अगर क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं है तो आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन अगर आपने ये यूज किया है तो जो इंटरनेशनल जज और जो हमारे नेशनल जज होते हैं वो आपको रिमूव करने के लिए आपको इसको बोलेंगे और आपको फिर आपकी स्कोरिंग, आपका मतलब जो कंपटीशन है उसके ऊपर बहुत मतलब आप स्कोरिंग बहुत डाउन हो जाएगा आपका, मतलब आप वो स्कोर नहीं कर सकते जो आप करने वाले थे। जैसे कि आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे राइट शोल्डर में जो ये एथलीट है हमारा आदिल अंसारी, इसका राइट शोल्डर में स्ट्रिप लगा हुआ है और पैरों में भी स्ट्रिप लगा हुआ है। तो लेकिन ये क्लासीफायर ऑथराइज करता है, क्योंकि अभी आप देखोगे W1 जो एथलीट है हमारे लेफ्ट साइड में जो ब्लू टी शर्ट में है, वो बो पकड़े हुए हैं लेफ्ट में। आप थोड़ा देखना है इधर, क्योंकि उसने यहाँ पे स्ट्रिप्स क्यों लगाया, क्योंकि उसका बैलेंस बनाने के लिए। अगर वो बैलेंस बो उठाएगा तो बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा और वो गिर भी सकता है व्हीलचेयर से। तो इसीलिए असिस्टिव डिवाइस W1 के लिए हम यूज करते हैं। असिस्टिव डिवाइस W2 व्हीलचेयर। तो जहां व्हीलचेयर का नाम आता है, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ। व्हीलचेयर आप इंडिया में भी बहुत जगह मिलता है, आप यहाँ से भी ले सकते हो और आप इसको कस्टमाइज बाहर से भी आप इसको मंगा सकते हो। लेकिन इसका दोस्तों कुछ साइज होता है, खरीदने से पहले आप थोड़ा उसका साइज जो एक मेजरमेंट होता है वर्ल्ड आर्चरी रूल के अकॉर्डिंग, वो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही ले। तो जैसे कि आप एक पिक्चर देखोगे, उसका जो आर्म पिट है और अप टू शोल्डर 110 mm, अगर ये आपका जो बैक आर्म पिट है ये इससे ऊपर होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपने क्लासिफिकेशन के दौरान आप W1 एथलीट हो और आप इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट के लिए गए हो और आपने जो बैक आर्म है वो आपकी हाई है, तो दे कैन नॉट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट। और जो व्हीलचेयर का साइज होता है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर होता है उसका लेंथ, वो आप चेक कर लें।
तो जो W2 एथलीट होते हैं उनका व्हीलचेयर का मैंने मेजरमेंट बताया, उसका साइज बताया और बैक आर्म पिट का भी मैंने साइज बताया। अब नेक्स्ट देखोगे असिस्टिव डिवाइस W2। अब यहाँ पे भी सेम पिक्चर है लेकिन मेजरमेंट दूसरा है। मेजरमेंट क्या है? बैक आर्म पिट का यह है, लेकिन साइड जो आपका ट्रंक को सपोर्ट करता है वो आपका 100 mm होना चाहिए। अगर आपका 100 mm से ज्यादा है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जब आप व्हीलचेयर आप समझो खरीदते हो या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन खुद से कराते हो टेलीस्कोप के लिए, तो कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो, कोई भी ऐसा पार्ट ना हो व्हीलचेयर का जो आपके बो आर्म जिसमें आप धनुष पकड़ते हो वो आर्म को, वो हाथ को सपोर्ट न करे। एंड कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो आपकी व्हीलचेयर के साथ कि आपका ट्रंक को सपोर्ट ना करे, नहीं तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दें। और व्हीलचेयर के अंदर 4 ही व्हील होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई लकड़ी का बूटा या कुछ ऐसी डिवाइस व्हीलचेयर के नीचे उसको, क्योंकि व्हीलचेयर कभी कभी थोड़ा हिलता है तो उनका कोई लॉक नहीं कर उसको कर पाते, तो उसको क्या कुछ आर्चर मैंने देखा है, लेकिन उसको अलाउ नहीं है। कोई भी आर्चर कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं यूज कर सकता है, ओनली फॉर व्हील, दैट्स इट। असिस्टिव डिवाइस W2 स्टैंडिंग स्टूल। आप देखोगे राइट साइड में एक एथलीट है जो स्टूल के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि स्टूल आपका मेजरमेंट क्या है, हाइट कितना है और उसको कैसे फिट किया है, उसका एक ये पॉइंट बहुत ही समझने वाला है। जैसे कि स्टूल का साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्टूल का कोई भी पार्ट आपके बो आर्म को सपोर्ट ना करे, जैसे कि मैंने व्हीलचेयर में बताया, और आपका स्टूल का कोई भी पार्ट आपके ट्रंक को सपोर्ट ना करे। असिस्टिव डिवाइस W2 स्टैंडिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आपने पहली स्लाइड में देखा था कि वहां पे एक पिक्चर था, यहाँ पे 3 पिक्चर है विद स्टूल। तो नंबर 1 पिक्चर आप देखोगे, एक फीमेल पैरा आर्चर है जो स्टैंडिंग कैटेगरी में है, लेकिन वो स्टूल भी शी इज यूजिंग स्टूल। यहाँ पे आप स्टूल देख सकते होंगे, स्टूल के 2 लेग बैक साइड है और 1 लेग फ्रंट साइड है। मीन्स ऑफ दैट ये एथलीट कैलिपर यूज करता है। और स्टैंडिंग पोजीशन में आप स्क्वायर स्टांस से शूट करते हो या ओपन स्टांस से। अगर आपने दोनों लेग आगे की तरफ किया तो आप अपने स्टांस में कंफर्टेबली खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टांस आपके शोल्डर के लेवल में होता है। अगर आप दोनों स्टूल के पैर आगे की तरफ करोगे, स्टूल के पैर आगे की तरफ करोगे 2 पैर, तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। आप सेकंड पिक्चर को देखोगे, यहाँ पे आर्चर थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन जो स्टूल का पोजीशन है वो थोड़ा चेंज है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में 2 लेग पीछे की तरफ है, लेकिन इसमें 1 लेग पीछे की तरफ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो मैक्सिमम बॉडी वेट पीछे की तरफ होता है और आर्चर का डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं और आर्चर गिर सकते हैं। अगर हमने एक स्टूल का 1 लेग पीछे की तरफ किया है तो ज्यादा स्टेबिलिटी बनता है। आप 3 नंबर पिक्चर देखोगे, यहाँ पे आर्चर बैठा हुआ है और वो एम्प्यूटी लेग है, लेफ्ट लेग। तो यहाँ पे 4 लेग स्टूल है, लेकिन ये स्टूल आपका अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड आर्चरी स्टैंडर्ड 60 इंटू 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं दोबारा, जो मैं कई बार ऐड कर चुका हूं, द पॉइंट, आपका स्टूल का कोई भी पार्ट आपके ट्रंक और बो आर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टिव डिवाइस स्टैंडिंग स्ट्रिंग आर्म। आप यहाँ पे देखोगे एक आर्चर शूटिंग पोजीशन में है, लेकिन उसका जो राइट हैंड है वो आर्म से एम्प्यूटी है। तो ये एक असिस्टिव डिवाइस है जिसको हम स्ट्रिंग आर्म रिलीजर बोलते हैं। ये आप देखोगे उसने आपके रिस्ट के, अपनी रिस्ट के अंदर उसको हुक किया हुआ है और कंप्लीट एंकर में है। तो ये असिस्टिव डिवाइस है। आप जिसको एम्प्यूटी हैंड होता है वो इस डिवाइस से आर्चरी खेल सकता है।
कंपाउंड भी खेल सकता है और वो रिकर्व भी खेल सकता है। रिकर्व कैसे खेल सकता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे असिस्टिव डिवाइस स्टैंडिंग कैटेगरी, जो लेफ्ट साइड में एक आर्चर है, इसका राइट हैंड या तो एम्प्यूटी है या उसको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है कि वो उस हाथ से अपना बो पुल नहीं कर सकता है, अपनी स्ट्रिंग पुल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम शोल्डर डिवाइस विद रिलीज हेड है। अब देखोगे एक इसमें माउंट है जिसके साथ हमने रिलीजर फिट किया हुआ है और वो उस डिवाइस की मदद से अपना स्ट्रिंग खींचा हुआ है और जैसे ही वो बैक फील करता जाएगा, जस्ट बैक फील करता जाएगा, ये अपने आप सरप्राइज रिलीज हो जाता है। और राइट साइड में आप देखोगे माउथ टैप, एक ही डिवाइस है माउथ टैप। जिस आर्चर को राइट हैंड समझो एम्प्यूटी है या आर्चर का बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है तो वो आर्चर माउथ टैप यूज कर सकता है। ये बहुत सिंपल मेथड है। एक रिबन को हम डी-लूप के साथ में हुक करते हैं और जस्ट उसको बाइट करते हैं, दांतों से खींच के हम चला सकते हैं। ये आर्चर हमारा अभिषेक खावरे है जो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। असिस्टिव डिवाइस स्टैंडिंग कैटेगरी ब्लॉक, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत एथलीट जो पैरा एथलीट होते हैं जिसका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा होता है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो क्या है दोस्तों? ब्लॉक मीन्स जैसे लकड़ी का बूटा हम पैर के नीचे लगा के अपना जो बॉडी बैलेंस को हम इक्वली कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मेजरमेंट होता है जो वर्ल्ड आर्चरी के रूल के अकॉर्डिंग 1 फीट होता है। तो वो प्लास्टिक का हम कोई डिवाइस बना सकते हैं या कोई हम, क्योंकि वो कैरी करना होता है इंटरनेशनल के लिए और नेशनल के लिए, तो हम लकड़ी का कोई बहुत भारी हो जाएगा, उसको हम कैरी नहीं कर सकते, तो वो हम अपनी अनुसार उसको हम बना सकते हैं। तो उसका मेजरमेंट आपका 1 फीट है। जैसे कि आज मैंने, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, और आर्चरी पैरा आर्चरी कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हम खेल सकते हैं, कैसे आज दीपा मैडम ने बताया और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब श्री चंद्रूकर जी जिन्होंने 40 साल का उनका अनुभव है कोच का और उनका इस आर्चरी फील्ड का, वो कोच हम उनके अंदर सीखे हैं। और आज हमारे जनरल सेक्रेटरी ऐसे है कि एक अगर गांव में कोई कोच है, अगर गांव में कोई कोच बैठा है दूर दराज, तो वो उसको नाम से संबोधित करते हैं। मतलब उनका नॉलेज ऐसा है कि वो एक ग्राउंड एक ग्रास रूट जो एक हमारे कोचिस है उनको भी सबको जानते हैं। आज हमें फक्र है और मैं यहाँ पे कोचिस के लिए मैं बताना चाहूंगा जो मैंने आज सिखाया, आज जो दीपा मैडम ने बताया, इंट्रोड्यूस किया मेरे पैरा एथलीट्स को, मेरे आर्चर्स को, हरविंदर सिंह, ज्योति बालियान, राकेश, तारिफ दहिया, पूजा खन्ना, देयर इज मैनी एथलीट, में सबका नाम नहीं ले सकता। तो आज अगर हमारे पास में इंटरनेशनल मेडल है पैरा स्पोर्ट्स में, ओलंपिक मेडल भी हमारे पास में है, एशियन गेम मेडल भी हमारे पास में है, वो सब जगह मेडल है। तो दोस्तों इसका एक रीजन, इन सबको एक धागे में पिरोने वाला वो एक कोच, वो एक गुरु होता है। जो आज आपका मैंने क्लास लिया और जो मैंने अपनी क्लास के दौरान पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, इस सब को जो आज मेरे देविंदर झाझरिया है, पूजा मैडम है, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में आज इतने मेडल है, 70 से ज्यादा एशियन गेम में हमने मेडल लिए, पैरा एशियन गेम में मेडल लिए। तो इन सब के पीछे मैं एक आपको छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। इनके पीछे एक इतना बड़ा एक कहानी है, एक मैं आपको उससे कुछ रिलेट करना चाहता हूँ। एक जो इस कड़ी को जोड़ने वाला है दोस्तों, वो एक कोच होता है। तो मैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। मैं आपको संदेश सुनाना चाहूंगा और उसके बाद में मैं अपनी बात रखूंगा। खेल की दुनिया में भी टीचर होते हैं, लेकिन वहां शब्द प्रयोग होता है गुरु। गुरु शब्द, गुरु शिष्य परंपरा। आपने देखा होगा कि ये गुरु ऐसे होते हैं, खुद के संतानों के लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया हो, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। अगर वो अच्छा रेसलर है और उस गुरु के पास ट्रेनिंग ली है, तो उस रेसलर के लिए वो गुरु सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करते हैं। अपने बच्चे बीमार होंगे तो भी शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन अपना एक शिष्य अच्छा रेसलर बने। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, जिसमें गुरु
अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। आज भी जब एक खिलाड़ी सक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है, और एक गुरु का शिष्य जब सक्सेस पाता है तो गुरु उस शिष्य को याद करता है। दोस्तों, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके लिए मतलब एक बड़े हॉल में मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स का एक मतलब उन्होंने मिसाल दिया। तो मैं उन सब जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो आज मुझे डिफरेंट स्पोर्ट्स के, जैसे कि हमारे सत्यनारायण जी है एथलेटिक कोच, हमारे वीके डबास जी है, और जेपी नोटियाल जी है, और हमारे राहुल स्वामी जी है जो पीसीआई से है, मतलब वो सब लोग उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स को जो मतलब आज यहां तक लेके आने में उन सब का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। Thank you, Kuldeep. Thank you so much. Any question, please? Yes, question लूं उससे पहले मैं जरूर कहूंगी, what a well conducted, comprehensive, good description, all details included, very well rehearsed, very well presented webinar session. Thank you, Kuldeep Kumar Vedwan sir. और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो विजुअल्स आपने यूटिलाइज किए हैं, आई थिंक उससे हमको बहुत एक क्लैरिटी मिली है। इवन आई हैव लर्नड अ लॉट। एंड जो एक बात आपने मुझे कही वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं उनको गांव-गांव में बसे हर कोच का और प्लेयर का शायद नाम बाय नेम उन्हें ध्यान है। तो जब ऐसा ग्रासरूट लेवल फोकस किसी भी स्पोर्ट में आता है तो बहुत जल्दी हमें उम्मीद बनती है कि और ज्यादा मेडल आगे आने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उसमें दिखाया जा रहा है। क्वेश्चंस आए हैं कुछ। पूनम यादव आर्चर हैं, वो बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी नीड असिस्टेंस उन्होंने बोली थी, बट मुझे लगता है उसका आपने बहुत अच्छा जवाब ऑलरेडी वेल डिस्क्रिप्टिव विद डायग्राम्स एंड पिक्चर्स रेफरेंसेस मेजरमेंट्स आपने दिया है, और ये सब स्लाइड्स हमारी प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली रहने वाली है। एक वुडन ब्लॉक का हाउ मच लेग लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक में वो 1 फीट मैडम, 1 फीट तक हम यूज कर सकते हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन है। एंड there is a compliment coming from Hussaini ji that this is the first ever para archery very descriptive information session regarding the classification. So there is a compliment coming your way, sir. Thank you for that. हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तमिलनाडु के जनरल सेक्रेटरी है जी। Any other questions? कोई क्वेश्चन सामने है? मुझे लगता है मैडम कम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैंने the beauty of a good session. So Rajiv Tukralji from Sports Authority of India is our invigilator. He will be evaluating our session today. I know he's going to be a happy man today. And एक और मैं आपको बात बताऊं, हमारी attendance average 300 से नीचे बिल्कुल नहीं आई है इस बार. So it has definitely caught the attention and retained the people who were watching the session. We have Rajiv Tukral sir on screen. Sir, would you like to say 2 words to everybody? As Rajiv sir, I think his internet is. Madam, सबको नमस्कार। जी sir, we can hear you. बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मोटिवेट इन्होंने किया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छा कहते हुए आपने सबने सुनाई है जी। थैंक यू। सो thank you. One session that we have been able to conclude in time, absolutely in right time. Thank you so much for joining. And when we have sorry to interrupt you in between, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, आप मतलब उनको एक बार फिर मतलब लास्ट में
लेके आइए प्लीज। चाह रहे हैं उनको लाना, so we have time. Is there still? I think he is there. जी. Not in the room. He's not in the room. I think we are missing him here. Pooja है रूम में. We would like to one of the female para archer also. पूजा उनको खोजना बहुत मुश्किल है मैम, वो उन्होंने नाम अभी तक चेंज नहीं किया। तारीख को खोज सकते हैं हम लोग, तारीफ को लीजिए, तारीफ से पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस फ्रॉम बीइंग एन आर्चर टू एक्चुअली बिकमिंग अ कोच इन हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तारीफ कैन हियर ये तारीफ ऑन द मेन स्क्रीन। कैमरा नहीं खुला उनका मैम, आई हैव आस्क्ड हिम। आप अपना कैमरा खोलेंगे या हमारी आवाज सुन सकते हैं? I have asked to, but I think he has lost. पूजा खन्ना is here. आप देखिए पूजा खन्ना को, it is 1HKCOB ऐसे करके, अगर आप चैट बॉक्स में पूजा खन्ना का भी अभी एक हेलो आया है। 1HKCOB. This yes. one. Yes. Yes, there she is. We found you. So Pooja, how are you? Yes. मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूजा, सबसे पहला काम आप सेशन के बाद करेंगे, आपका जो गैजेट है उसमें आप अपना नाम डालेंगी सेटिंग्स में जाके, तो उसमें हम आपको इजीली लोकेट कर पाते हैं। तो कैसा लगता है पूजा, आर्चरी ही क्यों? आर्चरी ही क्यों? मैम आर्चरी जैसा कि सर ने बताया एक तरह का योगा है, फोकस। तो इसमें सबसे ज्यादा यही कि हम अपने आप से ही कॉम्पीट करते हैं, अपना लेवल पता चलता है। और आपको इंट्रोडक्शन टू आर्चरी कैसे मिला, मतलब मोटिवेशन कहाँ से आई, कैसे पता लगा कि डिसेबिलिटी में भी स्पोर्ट्स हैं और अगर हैं तो उसमें भी आर्चरी, ऐसा इंफॉर्मेशन कैसे मिला? क्योंकि स्पोर्ट्स मैंने भी ज्वाइन करी, लेकिन मुझे स्विमिंग के बारे में पहले पता लगा तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन करी, फिर मुझे एथलेटिक्स का पता चला तो मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन करी। तो आपको आर्चरी की तरफ रुझान कैसे आया? मैम जैसे कि आपको भी पता है, मैं पहले पैरा एथलीट थी जो डिस्कस थ्रो करती थी जी। तो इसके बाद मैंने जब राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू की थी अपनी, वहाँ पे मैंने आर्चरी को देखा था। तो वहाँ पे कुछ डिसेबल बच्चे थे जो ट्राई कर रहे थे इस गेम को करने के लिए, तो मैंने भी कोशिश की कि हाँ ये गेम मैं कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ से ये चीजें जो है वो शुरू की थी अपनी गेम की, और एक भरोसा था कि मैं बहुत अच्छा कर लूंगी इस गेम में। तो सब कुछ साथ रहा और अच्छे से हो गया गेम। और कोचिंग आपने कहाँ करी अभी तक? मैम मैंने अभी तक ही राजीव गांधी स्टेडियम में ही शुरू किया था। संजय सुहाग सर जो है मेरे कोच, अभी तो जो मैंने शुरू से लेके एंड तक अभी तक उन्हीं के साथ प्रैक्टिस किया, जितना भी था सभी बहुत सपोर्टिव थे ग्राउंड पे भी, और अपने पैरा के भी कुछ प्लेयर थे जो लगातार सपोर्ट कर रहे थे। आपने भी जैसे रियो में आप साथ थे, तो कंपटीशन के टाइम पे आप भी आए थे मेरे कि बहुत अच्छा खेलना। आपको रात को भी आपने मुझे मोटिवेट किया था कि कल तुम्हें बहुत अच्छा खेलना। तो सब चीजें बहुत अच्छी होती चली गई और एक भरोसा था कि अपने आप पे कि करना है तो हो जाएगा। आपको आर्चरी करते कितना साल हो गए पूजा? मैम मेरे को हो गया 6 साल, पर मैंने 1.5 साल में ही ओलंपिक क्वालिफाई किया था। बहुत बहुत प्राउड, मुझे तो 15 साल लग गए। बहुत 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 मुबारक पूजा, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और अब अगला कौन सा कॉन्टेस्ट है? 2021 की तैयारी में आप लगी हुई हैं, और आपका कौन सा मेजर इवेंट है? आप बताएंगे कि आपकी क्लास कौन सी है, आप कौन से इक्विपमेंट से शूट करती हैं, और कौन से इवेंट के लिए आप बेसिकली तैयारी कर रही हैं? जी मैम मैं रिकर्व बॉल से स्टैंडिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती हूँ, ओपन कैटेगरी वुमेन। और इसमें 70 मीटर जो डिस्टेंस होता है उस पे हमें 360 पॉइंट में से कलेक्ट करने से हाईएस्ट पॉइंट। और अभी मेरा जो अगला जो गेम है हमारा, अभी फिलहाल के लिए नेशनल गेम है, शायद लॉकडाउन के बाद हमारा पहला वही होगा, क्योंकि वहां से ही हमारा आगे का शुरुआत है। और लॉकडाउन में तैयारी कैसे? सॉरी मैम, लॉकडाउन में तैयारी कैसे? लॉकडाउन में सबसे पहले तो जो ये चल रहा है सेशन, ऑनलाइन सेशन है, ये बहुत हेल्प कर रहा है। आर्चरी का भी एआई बहुत सपोर्टिव जो ऑनलाइन सेशन चला रही है, जैसे कि मेंटली ट्रेनिंग जो है, फिजिकली कैसे अपने आप को घर पे रहते हुए भी कैसे ट्रेन करना है,
जो कुलदीप सर है, ये सभी जो साइंस के जितने भी कोचेज है, सर है, सभी लोग एटलीस्ट सभी प्लेयर्स को एक खाली रहने की बजाय कुछ ना कुछ मोटिवेट डेली की डेली कुछ ना कुछ सेशन में ऐसा बताते हैं जो हमें हर रोज ये प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ हमें ये भी, हम अकेले मतलब कि खाली रह के ये चीजें भी कर सकते हैं। तो लगातार थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होकर खाली नहीं रह रहे, कर रहे हैं। थैंक यू पूजा, बहुत अच्छा लगा। और आपको रियो के बाद शायद रूबरू अभी मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल रियो की सारी मेरी यादें तुमने ताजा कर दी। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कंपटीशन था। So thank you Pooja, and keep motivating. We need more women like you to come forward and become a part of the sports fraternity. हम महिलाओं को आगे लाएं, ऐसी हमारी सोच है और आप हमारी ऐसी सोच को बढ़ाने में मदद करती हैं। थैंक यू सो मच। एंड हम जनरल सेक्रेटरी सर को एक बार लें फॉर द क्लोजिंग एड्रेस। संदीप है वो? नो मैम, ही इज नॉट देयर। He's not there. I think everybody is busy. So thank you, Kuldeep sir. Thank you so much. Thank you, Harvinder, for those motivational words and being the motivation for all of us. God bless you. And ये जो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी फोकस का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो एक ही लाइन सबसे पहले, मैंने छोटे से लेके अभी तक, अभी से लेके अभी तक और आगे भी, कि अर्जुन की तरह अपनी नजर मछली की आंख पे रखो। तो जो सबसे बड़ी मोटिवेशन की लाइन फोकस के ऊपर कभी भी इतिहास में एटलीस्ट भारत में बोली जाती है तो वो एक धनुर्धारी के तीर के निशाने की और एक अर्जुन जैसे धनुर्धारी की दी जाती है। तो पैरा आर्चरी एंड आर्चरी, लाइक कुलदीप सर सेड कि मैंडेविल गेम्स में सबसे पहला पैरा का इवेंट ही आर्चरी था। So we look forward to the growth of para archery in India, and thank you all who are associated with para archery for making it possible in my country to further the moment of Paralympics and the games, especially para archery. Thank you so much. Good evening. God bless. And I will see you all again tomorrow at 3 p.m. for another session. Good evening. Thank you so much. Thank you. Good evening.